Good morning, everyone. On behalf of Pimpri Road Education Trust, Nutan Group, and Sakar In, I welcome India's legend in JEE training, Honorable Shri Anand Kumar Sir from Super 30. We also welcome Mona ma'am, students, parents, teachers, and all the participants. We are excited to listen to one and only Honorable Anand Sir. Before starting the session, let me introduce PCET Nutan Group to all the participants. PCET is known across the country for quality placements and disciplined academics since 1990. And Nutan Group was also started by Honorable Lokmanya Bal Gangadhar Tilak ji before 112 years. We have four engineering colleges. We have diploma, MBA, MCA, architecture, CBSE school, junior college, and we are also about to start PGDM course. So we have everything from KG to PhD. Our placement ratio is around 70 to 80%, and it is done by Central Placement Cell of PCT Nutan Group. Around half of our students are selected in core or IT product companies with salary of more than 4.5 lakhs average. Almost around 23,000 students we have placed till date. Not only our students, dear friends, we also place the students from across the country through off-campus and full campus drives. We also have almost around 600 plus recruiters, and our highest salary is almost around 32 lakhs. Around 10 university toppers are there every year. We are also good in research work. We have filed almost around 450 plus patents. We are in top 200 colleges across India as per Government of India's NIRF ranking for consecutive 4 years. We are also ranked in top colleges by Outlook, Times, India Today, Data Quiz, and many other agencies. We are proud to say that most of our institutes are NBA, NAC, or ISO accredited. Dear friends, whoever are the students and parents of 12th standard, we have PCET Nutan Mock Test Series 2020. We are starting the PCET Nutan Mock Test Series from July. So please do participate in this. We have taken the advice of experts, and three mock JEs as well as three mock CETs will be conducted through this, and you will get the feel of actual JEE and CET exam. So I appeal all the students and parents to make sure that their wards are participating. आनंद जी, आपने सारे भारतवर्ष को रियली एक अच्छा सा मुकाम दिया है। आपके ऊपर सारे भारतवर्ष को दिया है। आपने हिंदुस्तान के सारे बच्चों के दिलों में एक आस जगा दी है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी आईआईटी में एडमिशन पा सकते हैं। और अब सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। आपकी वजह से सारे टीचर्स को भी एक इंस्पिरेशन मिला है। हमारे महाराष्ट्र में भी पीटीए के सारे टीचर्स हमारे रंजित जादव सर के साथ और अनेक से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बेताब है आपको सुनने के लिए। ओवर टू यू। Good afternoon, everyone, and thanks a lot, Mr. Ramandel, for your kind words of wisdom. Great things never come from comfort zone. It takes years to be successful and involves a lot of dedication and hard work. And today, on this platform, we have a guest who himself is success personified. क्या कोई सोच सकता है कि पटना में रहने वाला व्यक्ति जिसके पिताजी डाक कर्मचारी थे, वो व्यक्ति जो एडमिशन मिलने के बावजूद कैम्ब्रिज नहीं जा पाया क्योंकि फ्लाइट के पैसे नहीं थे और फिर उनके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, वो पटना की तंग गलियों से गुजरने वाला लगभग स्लम समान एरिया में रहने वाला शख्स उनके घर जापान से एक ब्यूटी क्वीन एक्ट्रेस नोरिका फिजुवारा आएंगी। She was impressed by his program Super 30 and decided to make a documentary on his work. वो उनके घर पे पूरा दिन रही
और वहाँ का माहौल देखा, सुपर 30 का सेटअप देखा एंड प्लान टू राइट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। हाँ, मैं उसी शख्स की बात कर रही हूँ जिनकी फिल्म सुपर 30 लास्ट ईयर रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही एंड 8 स्टेट्स में टैक्स फ्री कर दिया गया सो दैट एक मैसेज सभी बच्चों को पहुंच सके और लॉकडाउन में बार बार दिखाई भी दी और वो प्रेरणा स्रोत बनी। Let's welcome hero on this platform, the real hero, Super 30 Anand Kumar sir, and hear his success story unki zubaani. Sir, we welcome you on this platform. बहुत बहुत And we धन्यवाद would आपका। like to and we would like to know about आपने इस सुपर 30 की स्थापना कैसे करी and why सुपर 30? Why not सुपर 10? Why not सुपर 100? इसके भी पीछे कोई गणित है क्या? दरअसल में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीसीईटी को, सकाल टाइम्स को और तमाम ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद मैं मोना पुरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आई और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए भी धन्यवाद आपको देना चाहूँगा क्योंकि आप खुद गरीब बच्चों के लिए सुमित फाउंडेशन चलाती हैं दिल्ली में और अच्छा काम कर रही हैं। तो सबको मेरा धन्यवाद और सुनने वाले तमाम लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं हुआ था, जैसा कि आप फिल्म में बहुत कुछ देख चुके होंगे, तो जब कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं हुआ उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कुछ काम किया, जैसे पापड़ बेचता था और अपनी पढ़ाई करता था। बहुत आर्थिक मुश्किलों का सामना करता था, बीच में कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारे जैसे देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन उनमें कोई वैसी उनको सुविधा नहीं है जिसके आधार पर वो कुछ अच्छा कर सके। इसलिए 30 बच्चों का चुनाव किया। मेरा भाई परमाव साथ दिया, माँ खाना बनाने के लिए तैयार हो गई और बच्चे 30 रख लेने लगे। उस समय हमारे पास 30 बच्चों को रखना ही अपने आप में चैलेंज था क्योंकि हमारे पास ना आर्थिक कोई सपोर्ट था। और आज भी चाहे मुकेश अंबानी जी हो, आनंद महिंद्रा जी हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे सीएम साहब हो नीतीश कुमार जी, हमने आज तक 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया। सब लोगों ने ऑफर किया, तो पैसा जनरेट करके कहीं पढ़ा के कहीं कुछ स्पीच दे के जो आता है उससे बच्चों का खाना, रहना और हमारे परिवार का भी भोजन भात चलता है। इसलिए 30 बच्चों को इसीलिए रखा क्योंकि हमारे पास सुविधाएं बहुत सीमित थी। अच्छा सर, फिल्म तो आज रिलीज हुई, परंतु 10 साल पहले भी आपको लोग जानते थे। डिस्कवरी चैनल पे आपकी डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें आपके सुपर 30 प्रोग्राम को रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज भी बोला गया। आपको कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। जब जो जानते हैं, सम्मान देते हैं, तो सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई के माता पिता खेत में मजदूरी कर रहे, कोई पटना से बाहर जाके, बिहार से बाहर जाके फैक्ट्री में काम कर रहे, कोई रिक्शा चला रहे, ऐसे परिवेश के बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके 5 स्टार होटलों जैसे कोचिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मात देते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले भी संस्था का काफी नाम हुआ। जापान में स्पेशली नोरिका फुजीवारा की आपने बात की, मुझे सुन के अच्छा भी लगा कि आपने पुरानी बातों को ताजा कर दी और याद दिला दी है। तो उस जमाने में एक NHK जापान करके, जापान का सबसे मशहूर चैनल है, टीवी चैनल, उस पर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें सुपर 30 को दिखाया गया। मेरा इंटरव्यू था, उसके बच्चों का इंटरव्यू था। बाद में उस इंटरव्यू को देखकर नोरिका फुजीवारा मिस जापान और बहुत सारे जापानीज एयरलाइंस, फुजी फिल्म, बहुत सारी चीजों की एम्बेसडर भी रही है। फिल्म की बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी रही है, नंबर 1 एक्ट्रेस रही है। तो वो यहाँ पर आई एक दिन हम लोगों के साथ, 2 दिन समय बिताया बच्चों के साथ। तो वो अपना अनुभव था। बाद में टोक्यो यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों को
सीधा पूरे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया। तो ये सब बच्चों का जब विकास होता है, और ऐसे ऐसे बच्चे जिनके सपने बहुत बड़े थे लेकिन बस बेचारे सपने ही तक देखते थे, वैसे बच्चों को हमने थोड़ा सा सहयोग किया और वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। ये मुझे बहुत गौरवान्वित करता है बात। ये खुद हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है ये बात। सर, जैसा अभी आपने बताया, हमने भी सुना था कि जो बच्चों का पैशन, जैसे सुपर 30 के कुछ बच्चे थे, उनका पैशन देख के, जुनून देख के, मेहनत देख के और काबिलियत देखकर कुछ बच्चों को डायरेक्ट टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया, अभी आपने बताया। उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे रहा ये पूरा? दरअसल में जब जापान में फिल्म चली, नोरिका फ्यूजीवाला आई, तो उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री छोटा सा बना लिया। वो भी जापान में एन चैनल पर जब फिल्म चली तो काफी चर्चा हुई इस बात की कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा हो रहा है। तब इसका ध्यान वहां के जो सबसे संपन्न लोग हैं उनका गया। जैसे सीजीसी एक कंपनी है जिसके मालिक जो है, जिसके चेयरमैन जो है, उनके अंतर्गत 360 उनकी कंपनियां हैं और 3-3.5 उनका शोरूम है पूरे जापान और कई देशों में। तो उन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और कहा कि नहीं, आनंद कुमार के बच्चों को मौका दिया जाए। तो फिर एसिनो हेरिशी करके एक एडमिशन इंचार्ज थे, वो पटना है और कई बार आए, कई बच्चों का इंटरव्यू लिया। कई बच्चे जो इच्छा जाहिर की उन्हें जापान ले गए और हर साल एक बच्चे करके अभी तक कुछ बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो जापान में ही नहीं और भी देशों में है, लेकिन जापान से काफी लगाव है, उन लोगों ने काफी रिस्पेक्ट किया। Thank you, sir. So, Super 30 program itself is a benchmark which says that education किसी दौलत की मोहताज नहीं। एंड ऋतिक रोशन ने भी मूवी में बहुत बखूबी दिखाया है। और एक फेमस डायलॉग जैसे अभी सर बता रहे थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। चाहे रिक्शा चलाने वाले की बेटी हो, चाहे जनरेटर ठीक करने वाले का बेटा, मेहनत और परिश्रम से सब कुछ हासिल हो सकता है। And today we have with us a student of Super 30 जिनके पिताजी जनरेटर ठीक करते का काम करते थे गुड़गांव में, and माताजी घर संभालती थी। But yes, Super 30 brought a drastic change in his life. We have with us Abhishek Gupta ji, who has joined from Japan. अभिषेक जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। And it's really nice to see you smiling from Japan. Kindly unmute yourself. I think so you're not audible. Yeah. अभिषेक जी, आप बताएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा अपना, आपका जैसा सपना पूरा हुआ जापान जाने का सपना, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Abhishek ji, you are not audible. I'd like to request you to unmute yourself, or the technical team, if you can help him. You still are not audible. कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, एंड टेक्नोलॉजी में बैठे सर इस समय पटना में, हम दिल्ली एंड नाउ जापान। बट यस, आवर टेक्निकल टीम इज ट्राइंग। खैर कोई बात सर, नहीं, आप ये बोले आप कुछ बताएंगे अभिषेक के बारे में? सर, आपका स्टूडेंट था, इतने टाइम बाद आपने उसको आज देखा होगा। आप कुछ बताएंगे अभिषेक की लाइफ के बारे में? तब तक हम उनसे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है और मेरा ये मानना है कि ये एक खुशी का मौका है जिसके लिए पीसीईटी नूतन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अभिषेक से कम वर्चुअली ही मुलाकात कराई। नहीं तो बहुत जमाना हो गया था। पिछली दफा आप लोग 3 साल पहले इंडिया में जो एम्बेसी है जापान का, वहाँ के एम्बेसडर एक प्रोग्राम करवाए थे, तो अभिषेक को भी इनवाइट किया था और मुझे भी किया था। तो हम दोनों वही साथ में एम्बेसडर साहब के साथ एम्बेसी में ही खाना खाए थे। उसके बाद 3-4 साल हो गई, मुलाकात कभी नहीं हुई।
फोन से एक आध 2 बार 3 बार बात होती है, लेकिन अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पर मिलकर। तो अभिषेक के बारे में ये कहना है कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती और बहुत कुछ किया। तब तक टेक्निकल टीम जोड़ती है। मेरा सुझाव है कि मोना जी आगे बढ़ा जाए, जब जुड़ जाएगा तो बीच में हम लोग अभिषेक को लाएंगे। बाकी सवाल सुनिए। Thank you, sir. Sir, you were honored by Government of British Columbia, Canada. यहाँ तक कि टाइम्स मैगजीन में Okay, भी okay. आपके प्रोग्राम पद्धति के बारे में लिखा। आपकी मूवी भी बहुत इंस्पिरेशनल बनी और आपको दिखाया गया कि जहाँ आपने ये दिखाया भी कि जहाँ चाह वहाँ राह। परंतु आज के माहौल में आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले जैसे सीबीएसई को लेके काफी कुछ चल रहा था, तो उधेड़-बुन में आपका क्या सुझाव है या आपका क्या इसमें सजेशन रहेगा? देखिए, अभी हमारे सामने अभिषेक जी नजर आ रहे हैं, तो ये इस बच्चे की ही कहानी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सही बात है, मान सम्मान मिला। सभी मान सम्मान के हकदार ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने रात दिन एक परिश्रम करके, मेहनत करके दिखा दिया कि अगर आपके पास जिद है कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा दिखाने की, तो आप कर सकते। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तो जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी अगर ये बात मान ले कि ठीक है, सीबीएसई का एग्जाम अभी डेट अनाउंस हुआ था, फिर आगे बढ़ गया, कुछ बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, जो देना चाहिए तो प्रमोट किए जाएंगे। ये सब तमाम माहौल है कोविड-19 के चलते, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो भी सुन रहा है, बच्चे लोग सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पे क्षमता है तो, और है क्षमता, ये यकीन मानिए, तो आप अपने विश्वास के साथ, यकीन के साथ, धारा के विरुद्ध बहते हुए, इस कोविड-19 के विरुद्ध बहते हुए, मेहनत करके, संघर्ष करके पत्थर का सीना तोड़ कर दिखा सकते हैं कि हम लोगों में क्षमता है और पूरे देश और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि अभिषेक लाया। तो हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मोना जी, अभिषेक अगर बात हो रही है तो कर लिया जाए। Abhishek ji, thank you, sir. And Abhishek ji, am I audible now? Yeah, I can hear you, ma'am. Thank you, Abhishek. Am Thank I you very audible? much. Because like I think the problem is from my side. And as Anand sir said that your dreams and आपकी मेहनत, आपकी सपना पूरा हुआ, तो क्या आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे so that it becomes a bit informative for everybody, please. जैसे मेरा जो परिवार है वो बनारस से है बेसिकली, बट पिताजी को वो चाहते थे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो इसके लिए वो अपना बनारस छोड़ के उसके बाद वो काफ़ी दूसरे शहरों में जॉब ट्राई किए और रहे, और उनको बेस्ट लगा कि गुड़गांव जो कि एक कैपिटल के पास है, तो उससे काफ़ी सारी सुविधा मिलेंगी, तो इसीलिए वो गुड़गांव में सेटल हुए। वहाँ पे उन्होंने उनको जनरेटर ठीक करने की पहले से ही उनको पता था, वो ज्ञान था उनके पास, तो उन्होंने हीरो होंडा कंपनी में जॉब अपनी स्टार्ट की। तो हीरो होंडा चूंकि उसमें होंडा भी है, तो वो जापान से थोड़ा उनका लिंक अप था, तो मेरे पिताजी को जापान बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही। वो हमेशा कहते थे कि तुझे एक दिन जापान जाना है। और फिर जैसे कि मैं अभिषेक जी, क्या आपको पहले से ही जापानीज लैंग्वेज आती थी या कुछ आपने सीखा था पहले से ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे वो एक इच्छा होती है, तो स्कूल में जैसे पता चलता है कि दूसरे जगह से कि हाँ जापानी पढ़ाई जाती है, ऐसे पढ़ते हैं, तो हमारे स्कूल में एक सुविधा भी थी 2 साल के लिए कि आप जापानी ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें बस उसके अक्षर, जो स्टार्टिंग के 2-3 अक्षर होते हैं, वो सीखे थे कुछ टाइम। लेकिन वो अभिषेक जी, आपकी आनंद सर से कैसे मुलाकात हुई? आनंद सर से एक्चुअली जब मैं 12th का एग्जाम दिया और मेरा जब पहला अटेम्प्ट हुआ आईआईटी का, उसमें नहीं निकला, तो मेरे पिताजी और मैं बहुत ही हताश थे और हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो पिताजी को एकदम से याद आया कि किसी ने आनंद सर का जिक्र किया था उनके कंपनी में। तो फिर मैंने देखा कि एग्जाम कब है सुपर 30 का, तो पता चला कि ये बात है फ्राइडे की और संडे को एग्जाम था। तो मैंने फिर फ्राइडे को ही सर को ईमेल किया कि सर मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो सर ने कहा आप बिल्कुल जाइए वहीं पे डायरेक्ट सेंटर पे
आप बोल दीजिएगा, आप एग्ज़ाम दीजिए। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर एग्ज़ैक्टली 3 हफ्ते बाद मैं सर के सामने था। That means IIT, it was a second attempt for you, clearing यस, IIT or something. So nice. यस। मतलब कि आपने हार नहीं मानी एंड परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे। तो आज आप कहाँ पे हैं? जी। जापान में? What are you doing over there? मैं अभी जापान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, उसमें अपना बैचलर्स की स्टडी कर रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल साइंस और अभी जो मैं जिस बारे में रिसर्च कर रहा हूँ वो है सोलर पैनल के ऊपर, जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है। क्योंकि मेरा बचपन से ही एक तो जापान जाने की तो इच्छा थी ही, पर एक बचपन से ही एनवायरमेंट से लगाव था बहुत। तो वो आगे चीज़ आप मैं क्या करना सीखा। चाहते हैं अभिषेक? आगे आप क्या तो करना आगे चाहते हैं? मैं What is your और अभी मैं रिसर्च में और आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम और रिसर्च करेंगे, तो ऐसी हमारे पास काफ़ी सारी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जिनको हम सुधार सकते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही अच्छा हो जाए, वापस हमें मिल जाए। क्योंकि अभी हम काफ़ी देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बड़े-बड़े शहरों में बहुत धूल-मिट्टी है और स्पेशली दिल्ली में जैसे जो पीपीएम मीटर हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल पे था। तो उन सबको सुधारने का काम करना चाहता हूँ मैं। your thoughts, your ideas, your dreams and future plans? मुझे को स्माइल आ रही है। सर आनंद सर, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ आर यू फीलिंग जब आपका स्टूडेंट जापान जाता है, पढ़ता है और वापस अपने देश के बारे में सोचता है और आपके पदचिन्हों पे थोड़ा सा चलने का सोचता है, ब्रिंगिंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी, तो हाउ डू यू फील सर? आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सच में कि कोई बच्चा अपने देश के लिए इतना समर्पित होके सोच रहा है। कोई बच्चा में अपने देश के प्रति इतनी अच्छी भावना है जो मुझे बहुत उत्साहित करती है। क्योंकि सुपर 30 से मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ता है और पढ़ता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है, आसपास के इलाकों में, पूरे देश में मैसेज जाता है। जो लोग उसको जानते हैं कि मेहनत करके कहीं भी आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर फिर वापस देश के लिए आते तो और भी देश को भी फायदा है। इसलिए इस भावना का मैं बहुत कद्र करता हूँ और अभिषेक पर मैं गर्व करता हूँ। और उस दिन भी मुझे बहुत गर्व हुआ था जब टोक्यो यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करना था इंडिया में कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर की तरह अभिषेक को जो मिलने लाया था, तो बहुत अच्छा। सर आपकी बातों से अभिषेक भी स्माइल कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग अभिषेक? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरीज डू यू हैव विद आनंद सर? कितने साल हो गए कि आप अभी भी टच में हैं आनंद सर के, या आपके क्या एक्सपीरियंस रहा था सर के साथ? हाँ, बिल्कुल सर के साथ तो मतलब वो जो एक टच बन गया है, वो जुड़ गया है, वो तो कभी टूट नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो इंटरनेट है जैसे हमारे पास, मैं आपसे वीडियो से जापान में बैठे-बैठे बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं सर से हमेशा व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहता हूँ। और मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सर चाहे सिर्फ 30 बच्चों को चुन के पढ़ाते हैं, पर वो जो 30 बच्चे हैं, वो अपने परिवार में हर एक बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए। तो सर सिर्फ 30 बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके परिवारों को भी पढ़ा रहे हैं। तो वो एक जो भावना है, तो वो तो हमेशा मुझसे प्रोत्साहित करती है। चाहे मैं कभी भी कुछ सोच रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है ये, तो बस एक याद आ जाती है सर की, तो बस एक वो एनर्जी मिल जाती है काम करने की। बहुत अच्छी थैंक्स बात। अ लॉट अभिषेक, थैंक्स अ लॉट अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड आपने अपना टाइम दिया और यहाँ पे बैठे सुन रहे, आपके हमारे इतने सब बच्चे जुड़े हुए हैं, तमाम बच्चों को आपने इतना मोटिवेट किया। एंड आई रियली फील दैट जितने भी बच्चों ने सुना होगा वो अपने सपने को साकार करने में लग जाएंगे, और एक बार भी हार हुई तो उससे हारेंगे नहीं और अपना मेहनत करते रहेंगे। और आपने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। Thank you, Abhishek, for joining with us. Coming back to sir with you, Anand sir, there is a question coming from the parents that when should they start the preparation for IIT? Like Abhishek was talking about IIT. तो बच्चों की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, किस साल से शुरू करनी चाहिए?
दरअसल में मेरा ये मानना है कि आईआईटी की तैयारी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में आईआईटी करने का जिज्ञासा है, उसमें ललक है, कुछ नया इनोवेशन करना चाहता है, तो उसको आप बहुत कम उम्र से प्रमोट कर सकते हैं। छोटा बच्चा उसी समय से कुछ पजल्स दीजिए सॉल्व करने के लिए छोटे क्लासों में, कुछ अच्छे साइंटिस्ट का बायोग्राफी पढ़ने के लिए दीजिए। यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के बारे में कुछ बनाया हुआ रहता है, डॉक्यूमेंट्री छोटा 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का, उसको देखने के लिए कहिए। साइंस में, इंजीनियरिंग में अब तक कौन लोग बड़े बड़े काम किए, उसमें क्या है स्कोप है, उनको कितना बड़ा बड़ा अवार्ड मिला, ये सब चीजों को भी देखने के लिए कहिए। उसका फायदा जो सबसे बड़ा मिलेगा कि बच्चा मोटिवेट होगा कि आगे मुझे कुछ करना है, और धीरे धीरे उसकी इच्छा जागृत होगी, उसकी रुचि बढ़ेगी पढ़ाई के प्रति, साइंस के प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति। तो बचपन से मोटिवेट करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि आप कोई महंगे कोचिंग सेंटर में या किसी कोचिंग सेंटर में, बच्चा क्लास 7th में है 6th में है तो उसको डाल दी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसको मोटिवेट करना, उसकी सोचने की क्षमता कैसे विकसित हो, इस पर थोड़ा थोड़ा आप काम करते रहिए। कोई बुझावल पूछिए, कोई पजल दीजिए, करते Sir, any specific pattern to be followed for studying after class 12, after 10th और 9th के बाद कैसे कोई पैटर्न फॉलो करना चाहिए? जैसे आपने तो बहुत शुरुआती तौर पे कह दिया पजल्स वगैरह, बट व्हाट शुड बी द पैटर्न टू बी फॉलोड? दरअसल में ऐसा है, मेरा जो अपना मानना है, अपना समझना है कि पैटर्न तो एक फॉलो होना ही चाहिए। और कोई ऐसा नहीं कि हर बच्चे में अलग अलग तरह की क्षमता है, हर बच्चे में अलग अलग तरह की रुचि है। देखिए, जितना दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग हैं और बहुत रेयरली आपको कोई हम शक्ल मिलेगा कि मेरे चेहरा का मिलने वाला। फिल्मों में मिलता है और हम जीवन में भी कभी कभार हम शक्ल लोग मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से सबका दिमाग भी अलग अलग है, सबके सोचने की क्षमता, सबका आकलन करने का जो अपना इंट्यूशन होता है, सब अलग अलग है। तो आप देखिए कि बच्चा में इंटरेस्ट जागृत हो, इसके लिए प्रयास करिए। कोई खास पैटर्न पर लाके खास बुक से ही बहुत शुरुआती दौर पे पढ़ाने की जरूरत नहीं। जो उसमें नेचुरल ग्रोथ हो सकता है, बच्चे को चीजों के समझने के प्रति आकर्षण हो सकता है, ये जागृत हो तो अच्छी बात। Thank you, sir. There is a question for Dr. Girish Desai. He is joined with us. Sir, which policy do you implement to make successful engineers? Dr. Desai. Okay, thank you, madam. सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी दर्शक छात्राओं का, यहाँ मैं पेरेंट्स है, जो भी उपस्थित है, सबका यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। और पीसीईटी नूतन की तरफ से श्री आनंद कुमार जी सर, उन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दिया यहाँ पे, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पूरी पीसीईटी नूतन की टीम है और इनकी टीम है, उन्होंने बहुत वीक से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी एग्जाम का जो है वो शेड्यूल अभी फिक्स नहीं है, और उसके तरफ से मैं जो जवाब देने से पहले ये सब छात्राओं को ये कहना चाहूंगा कि पीसीईटी नूतन ने बहुत ही कॉम्पिटेंट अथवा बॉडी कंपनी लेके ये 3 सीटी के एग्जाम और 3 जेई के एग्जाम जो नेक्स्ट मंथ में प्लान किए हैं, तो आप उसका जरूर लाभ लीजिए। हमारे जवाब की तरफ मैं आता हूँ। हमारे 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नूतन कॉलेज, सब में हम ये देखते हैं कि 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कैसे हो। और इसके लिए मेनली स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड रहता है कि जॉब प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं मैक्सिमम, कुछ स्टूडेंट हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इनोवेशन में इंटरेस्ट रहते हैं। तो शुरुआत से ही हम ऐसे देखते हैं कि पहला जो होता है इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें मेडिटेशन से लेके स्पोर्ट्स और ब्रांच का उसका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग, ये प्रोसेस 15-20 दिन चलाते हैं और पूरे एकेडमिक डिसिप्लिन वे से हम जो है सिस्टम को चलाते हैं। सेकंड ईयर ऑनवर्ड हम उसके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया, जापानीज
लेकिन हम कोशिश करते कि एक फॉरेन लैंग्वेज को बच्चा अगर जो प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहता है तो जापानीज, जर्मन, जो भी जहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो उसमें फॉरेन लैंग्वेज एक सीखे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा फोकस करे। और ये सब चीजें सेकंड ईयर से लेके नॉर्मली ऐसा रहता है अभी के सिनारियो में, थर्ड ईयर सेकंड सेमिस्टर के बाद कंपनियों का आना चालू होता है। तो उस तब तक ये प्लेसमेंट के लिए जो स्टूडेंट है उसको पूरी तरह से रिगरस प्रोसेस में तैयार करना, ये हम पूरा उसका पैटर्न जो सिस्टम है उसमें बनाया है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बच्चों से करके ले, इंटर्नशिप पे ज्यादा ध्यान दे, और हायर स्टडीज के वेरियस सेल्स है उसके थ्रू मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन क्रिएट करना, और ये सब प्रोसेसेस में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी ये सब इंजीनियर्स जो है, तो मैं यहाँ पे जो छात्राएं उपस्थित उनको मैं कहना चाहूंगा जरूर कि अगर बहुत सारा कंपोनेंट, टेक्निकल कंपोनेंट जो है आज की तारीख में बहुत डॉलर्स में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट ईयर अगर इंजीनियरिंग में लेके ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बना सकते हैं और उस पर स्किल इंजीनियर्स हम कैसे कर सकते हैं, अगर इस हिसाब से हर एजुकेशन और हमने वैसे प्रोसेस बनाई है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंजीनियर प्रोसेस की तरह इंजीनियर बन सकते हो। तो थैंक यू फॉर आस्किंग। और मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि ये छात्रों को कि आप जो सीईटी और जेई है तो ये उसका जरूर लाभ लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर देसाई। आनंद सर, एक बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, काफी जुड़े हैं, क्वेश्चंस तो लगातार आते जा रहे हैं। परीक्षित जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि सर आपका क्या ख्याल है, कि आपको क्या लगता है कि जो जेई एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है, क्या वो लेना सही है? एकदम सही है, बहुत बार होता था और हमारा ऐसा 20-25 सालों का पुराना अनुभव रहा। बहुत बार ऐसा होता था कि कोई बच्चा जेई दिया, उसकी तबीयत खराब हुई, फॉर्म फिल कर दिया है, एडमिट कार्ड भी आ गया, वो जाना चाहता है और ऐसी स्थिति में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, परीक्षा छूट गई और फिर वो अगले साल के लिए मोहताज हो जाता है। तो लेकिन 2 बार एग्जाम से, और ये अच्छी सुविधा है कि जिस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएगा उसी के आधार पर आप आगे अपना दावा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मानता हूँ अगर 3 बार हो जाए तो और अच्छी बात है। तो 2 बार एग्जाम की जो सोच है बहुत अच्छी। थैंक यू सर। यहाँ मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि सुपर 30 मूवी तो लास्ट ईयर बनी थी, परंतु एक और मूवी थी जो सुपर 30 से ही इंस्पायर्ड थी, एंड दैट वाज अमिताभ बच्चन स्टारर आरक्षण। सर, हमने सुना है कि अमिताभ बच्चन जी ने आपसे कुछ टिप्स भी मांगी थी अपनी मूवी के दौरान। हाउ वाज द फीलिंग सर, अमिताभ बच्चन कमिंग टू यू एंड आस्किंग अबाउट द टिप्स? बहुत अच्छा था, वो भी अनुभव। आरक्षण फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, दिखाया गया था। और जब प्रीमियर शो चल रहा था या उस फिल्म का प्रमोशन चल रहा था, उस दरमियान अमिताभ बच्चन जी मुझे बुलाया, सम्मान भी दिया स्टेज पर। और पिछले 2 साल पहले केवीसी में भी उन्होंने बुलाया कौन बनेगा करोड़पति में, और एज ए गेस्ट, और मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ 25 लाख रुपए जीतने का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जी सच में महानायक हैं और दिल से भी बहुत बड़े और अच्छे इंसान हैं। सभी बातों को याद रखते हैं, जो समाज में अच्छा करता है उसका साथ देते हैं। तो इसी बहाने मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि हर आदमी का जीवन अपने आप में अद्भुत है। आज से करीब 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25-30 साल पहले मैं भी जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे कभी नहीं लगता था कि हमारे जीवन पर फिल्म बनेगी या मेरे पढ़ाए गए बच्चे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। लेकिन लगातार मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा और आज इस मुकाम पर हासिल है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे अच्छे जगहों पर हैं, मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई एसपी बन गया है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई किसी देश में एम्बेसी में काम कर रहा है। तो बड़े बड़े जगहों पर, अच्छे जगहों पर बच्चे पहुंचे, तो ये उपलब्धि। तो इस तरह से अगर आप बच्चे भी हिम्मत नहीं हारेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो आने वाला कल आपका भी होगा पक्का। तो परंतु अभी आपने जैसे बताया मैथमेटिक्स के बारे में, पर बच्चे मैथमेटिक्स से भागते हैं, तो क्या सचमुच मैथमेटिक्स बोरिंग है?
और पेरेंट्स भी हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं बट फिर उलझ जाते हैं। और आपके पढ़ाई में क्या ऐसा जादू है कि 30 के 30 बच्चे सुपर 30 के IIT क्वालिफाई कर जाते हैं? दरअसल में देखिए, मैथमेटिक्स जो अभी बच्चों को पढ़ाने की बात भी हो रही थी कि इनिशियल फेज से कैसे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, ये बात भी हो रही थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा तमाम पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़े तो उसको गहराई में जाके पढ़ें, तब उसमें रुचि जागृत होगी और तब आपको पढ़ने में मन लगेगा और आप अच्छा करेंगे। लेकिन बच्चे क्या होता है, सिंपल 23 26 को मल्टीप्लाई करो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो एक कॉलम पढ़ के फिर सबको ऐड कर दिया। लेकिन ऐसा करने से क्यों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, कम बच्चे बता पाएंगे। आपको मान लिया जाए कि किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, उसका फार्मूला बच्चे बता सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बता सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ बताया जाए तो नहीं बताया। तो हम बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि तुम जब तक चीजों को गहराई से नहीं समझोगे, उसका हाउ एंड व्हाई नहीं जानोगे, तब तक तुम कैसे समझोगे चीजों को, फिर उसमें नई चीजें नहीं खोज पाओगे। तो बच्चों को शुरुआती तौर से हाउ एंड व्हाई के साथ बच्चों को पढ़ाना, उनको सोचने के लिए नई चीज प्रेरित करना, एक ही सवाल को कई अलग अलग तरीकों से बनाना, ये हमारा प्रयास होता है कि बच्चों में ऐसी ऊर्जा भरी जाए कि एक ही सवाल को कई तरीके से बनाया जाए, एक ही मंजिल पर पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते मालूम हो तो बच्चा कहीं रुकावट महसूस करेगा तो दूसरे रास्ते का उपयोग करके चला जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना, फिर बच्चों को कंटिन्यूअसली टेस्ट लेना, उनको मोटिवेट करना, कई ऐसी बातें हैं जिसका ख्याल रखा जाता है सुपर 30 में, और उसी का परिणाम है कि आज बच्चे अच्छा करें। सर, आपकी ये सब बातें सुनकर मूवी का एक सीन याद आ गया जिसमें कितनी बखूबी दिखाया गया है कि कॉन्सेप्ट को समझो एंड मेक मैथमेटिक्स फन। सर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूछना चाहते हैं हाउ टू शेड्यूल द टाइम ऑफ स्टडी, टाइम कैसे मैनेज किया जाए स्पेशली फॉर द स्लो लर्नर्स। देखिए, हर बच्चे का स्कूल जाने का अलग रूटीन होता है, हर बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रूटीन होता है, इसलिए एक बांध देना एक खास रूटीन में पॉसिबल नहीं। लेकिन अभी मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस का माहौल है, कोविड-19 का माहौल है, इसमें बच्चों के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो जनरली बच्चे शिकायत करते थे कि सर दिन में तो मैं स्कूल में व्यस्त रहता हूँ या कॉलेज में जाता हूँ, शाम को ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ता हूँ। बताइए सर, अपना पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन ये कोविड-19 आपको मौका ही मौका दिया है, आपके पास समय ही समय है। तो अभी क्या है ना कि जल्दी सुबह उठे। इस कोविड-19 में बहुत सारे बच्चे लेट तक जागते हैं, लेट उठते हैं, इसको छोड़कर सुबह मॉर्निंग में उठिए, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करके, जो भी आपकी इच्छा है, टहल के, घूम के, जो भी आपकी इच्छा है, आप फ्रेश हो जाइए और फिर उसके बाद चाय पानी नाश्ते करके आप लगिए पढ़ाई में। तो उस समय तक पढ़ते रहिए जब तक आपका दिल लगता है। और अगर आप चीजों को समझते रहेंगे, हाउ एंड व्हाई के साथ पढ़ते रहेंगे, तो आपको फिर पढ़ाई छोड़ने की इच्छा भी नहीं होगी। तो मेरा यही मानना है कि पढ़ाई को आप जारी रखें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़िए। और पढ़ने के अलावे है कि आप फ्री टाइम में भी आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही हैं। बहुत बार बच्चा पढ़ा, जैसे ही पढ़ाई छोड़ दिया, फिर वो टिकटॉक पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, तो चीजों का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप जो चीज को पढ़ रहे हैं वही आपके दिमाग में बातें चल रही है कि अच्छा ये फिजिक्स का ऐसे फार्मूला था, अच्छा ये मैथमेटिक्स ऐसे बनाना, तो ये बातें चलती रहेंगी तो उसका असर पड़ेगा अपने जीवन पर और सक्सेस तक पहुंच पाइएगा। सर, बहुत सारे टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं और एक प्रश्न आ रहा है प्रोफेसर रंजीत यादव से कि डिड यू टेक एनी सेमिनार फॉर टीचर्स आल्सो इन फ्यूचर? अगर पीसीईटी नूतन का आदेश होगा, उन लोगों की इच्छा होगी, तो इसी मंच से हम लोग एक सेमिनार करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा के दिखाएंगे। मैं कैसे बताता हूँ, हमारी एक कहानी है। पढ़ाने में शुरुआती दौर पे क्या होगा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है शिक्षक गण ने, तो मैं जवाब भी बड़े दिल से दे रहा हूँ कि शुरुआती दौर में जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो बच्चे में कॉन्फिडेंस का कमी थी, क्योंकि बच्चे गाँव देहात से आते थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, वैसी व्यवस्था नहीं थी, बड़े बड़े स्कूल से नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल के होते थे जहां पर टीचर नहीं आ रहे, खिड़की दरवाजे तक चोरी हो गए। ऐसे बच्चे आके पूछते थे सर 5 स्टार कोचिंग और होटलों जैसे पढ़ने वाले बच्चे
का मुकाबला हम कैसे करेंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, फिल्म में भी दिखाया गया, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। तब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया और 2 कार्टून बनाए। मल्टीमीडिया का प्रयोग भी बाद में शुरू किया। शुरुआती दौर में चौक खल्ली से ही बनाता था, भोलू और रिक्की। दिखाया कि देखो ये रिक्की है जो कि बहुत अमीर घर का बच्चा है, पिज्जा हॉट डॉग सब खा सकता है, इसके पास तमाम सुविधाएं हैं। और ये है भोलू, बेचारा गरीब है, फटेहाल है, लेकिन पढ़ता रिक्की भी बहुत है, लेकिन भोलू सोचता बहुत ज्यादा है। तो सोचते आप क्या है, दिन भर आपके दिमाग में क्या चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक सवाल देता हूं मैं बोर्ड पर, तो सबसे पहले जो है आकर बता के चला जाता है रिक्की, और भोलू का मजाक उड़ाता है कि देखो आनंद सर ने जो सवाल दिया मैं उसको बना दिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल का हूँ, बहुत अच्छे कोचिंग से पढ़ा हूं, तुम कहाँ सवाल को बना पाते हो। तब उसका जवाब देता है भोलू, कहता है देखो जिस सवाल को तूने बनाया उसी का मैं दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन, छठा, सातवां, कभी कभी 10 सॉल्यूशन तक भी भोलू देता है। और तब रिक्की को पूछता है कि देख, पढ़ाई पैसे से होती है कि पढ़ाई चाहत से होती है, पढ़ाई बड़े बड़े स्कूल में जाने से होती है कि पढ़ाई जुनून से होती है, बता। तो इन बातों को कैसे बांध के बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों की रुचि और जागृत की जाए, इसके लिए जरूर पीसीईटी नूतन का अगर मन होगा, उनकी इच्छा होगी तो हम लोग फिर एक कार्यक्रम करेंगे। सर, आपकी बात सुनकर तेजस गुजराती सर फ्रॉम येल के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि वो ऐसा ही एक सेमिनार अगेन ऑर्गेनाइज करेंगे और सारे टीचर्स और सारे कॉलेजेस के फैकल्टी को जरूर इनवाइट करेंगे। एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वुड रियली लाइक टू थैंक तेजस गुजराती सर फॉर दिस कमेंट एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ अ थिंग। एंड ये बहुत आजकल प्रॉब्लम भी कई बार होने लग गई है सर, जैसे आपने बताया कि बच्चों में भी बहुत भटकाव है, सोशल मीडिया है, पीयर फैक्टर्स है, तो उनका जो डेडिकेशन है या एक कनेक्शन है विद द टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स इज आल्सो मिसिंग। एंड वो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वो जुड़ाव उनका बड़ा परेशान करता है कई बार। तो इस ये प्रश्न भी बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि इसको वो कैसे ठीक करें और या बच्चों को कैसे मोटिवेटेड रखें। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा। जैसे क्या है ना कि अभी हमारे घर पे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई के बच्चे हैं, तो स्कूल नहीं जाने पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बच्चे खुश होते हैं, छोटे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगता है कि अरे स्कूल नहीं जा पा रहे। अभी हमारा भतीजा बोला कि ऐसा है अंकल कि चलिए एक दिन स्कूल दिखा दीजिए। अभी क्यों बेटा, तो स्कूल देखने का मन करा, कितना दिन हो गया। तो बच्चों में इस तरह की भावना आना, समाज से कट जाना, दोस्तों के साथ वो खेलते थे, अपना लंच करते थे, टिफिन करते थे, जो भी कहिए, चाय पीते थे अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन सभी में से कट ऑफ हो जाने पर थोड़ा सा अजीब लगता है, और मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को आप ज्यादा समय दें, मल्टीमीडिया, मोबाइल, फेसबुक, ये सब छोड़ के बच्चों पर ज्यादा समय दें, उनसे बातचीत करें, उनसे दोस्ती बढ़ाएं, उनकी समस्याओं को जाने, उनकी खुशियों में शरीक हो। अब मेरे घर में बच्चे क्या करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप का कुछ फूल बना लिया कागज से, छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसा कर लिया तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, फिर उसको हम बताते हैं कि देखो इसको और अच्छा कैसे बना सकते हो। हालांकि मैं ही कलाकार हूँ, मैं भी कुछ नहीं जानता, फिर भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो बच्चों पर अननेसेसरी पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो खाओगे कहाँ से, देखो हमारा जॉब चला गया, जा रहा है, इस सब तरह की बातें मत बोलिए। उनको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए कि बेटा देखो ये जो कोविड-19 आया है, इसमें कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन इसमें जो छिपे हुए अवसर है, जो इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटी, उसको देखो, पढ़ो लिखो, अच्छा करो, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम भी साथ में करते हैं। So we have Dev DC Chhabra Sahab. He wants to know what are your suggestions for JEE aspirants 2022? बहुत अच्छा, अभी तो आपके पास काफी समय है। सबसे पहले आप क्या करें कि पूरी पढ़ाई को अच्छे से करें और पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ें। तुरंत शॉर्टकट पढ़ाई ना करें। जो सवाल आपसे तुरंत बन रहा है उसमें 1 स्टार लगाए। जिस सवाल को बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी मुश्किलें आ रही है, उसमें 2 स्टार लगाए। फिर जिसमें बहुत दिक्कत हुई है उसमें 3 स्टार लगाए। इस तरह से स्टार लगाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो दोबारा उसको पढ़ें। तो 2 स्टार्स और 3 स्टार्स प्रॉब्लम पर आप ज्यादा फोकस करें। और लास्ट में
अंतिम टाइम में एक छोटा शॉर्ट नोट्स हो, जब परीक्षा में 2 महीने 3 महीने बाकी उसी पर कंसंट्रेट करें, जो आपने पूरा सीखा उसका जिस्ट, उसका निष्कर्ष हो, और जो 3 स्टार वाले प्रॉब्लम है उस पर थोड़ा ज्यादा लास्ट की मेहनत। तो इस तरह से कई स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करिएगा तो आपको फायदा जरूर होगा। सर, संजय जी जानना चाहते हैं कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाया भी गया है, आपने पहले भी बताया है कि आपके नाम को मिसयूज करते हैं या कुछ, उस समय का आप थोड़ा वाकया बताएंगे क्या? अभी भी कुछ ऐसा है? या नहीं, एक और अभी प्रश्न भी आया है वैशाली जी से कि क्या हम सुपर 30 में, मैं 2 क्वेश्चन इकट्ठे ले रही हूँ, सॉरी सर। वैशाली जी जानना चाहती हैं क्या हम सुपर 30 में एडमिशन ले सकते हैं? दोनों प्रश्नों का जवाब देते हैं। शुरू से लेकर अभी तक हर काम में नकली साबुन, नकली तेल, नकली खाना सब मिलता है मार्केट में, तो नकली सुपर 30 भी बहुत बना, जो बहुत परेशानियों का कारण बना। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, फिर भी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम पर कितना केस किया, मुकदमा किया, गोलियां चलाई, और समझिए कि कई बार घायल हुआ। फिल्म में तो आपने एक बार देखा, कई बार ऐसे वारदात हुए। फिल्म रोकवाने के लिए कई लोगों ने मुकदमा किया कि इसको बदनाम कर दो, लेकिन उस पर खबरें चलाई इंटरनेट पर कि आनंद कुमार फ्रॉड एक्यूज्ड है, क्या 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 नहीं किया। लेकिन तमाम मुश्किलों में भी मैं अपनी जो धैर्य है, अपना जो संबल है वो बनाए रखा और प्रयास किया कि आगे बढ़ते जाए। तो फिर नकली सुपर 30 भी खुला। आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते कि आनंद कुमार के क्लासेस कर दी, तो मैं किस पर किसके खिलाफ कोर्ट में जाऊं, केस मुकदमा करूं? ना हमारे पास इतनी क्षमता है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं मुकदमा सबसे लड़ूं, और सबसे बड़ी बात की ना हमारी इतनी इच्छा है। तो जहां पर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, बार बार मैं सामने आ रहा हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म है। जैसे देखिए पीसीईटी नूतन ने कहा कि आनंद कुमार आ जाएंगे, तो आनंद कुमार आपके सामने है, लेकिन आनंद कुमार आएंगे ही नहीं। उनका कोई वीडियो क्लिप दिखा के, कोई फोटो टांग के बच्चों से ठगी कर रहा है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तमाम पेरेंट्स से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि भाई हमारे चलते किसी का लॉस हो जाता है, लेकिन आप सावधानी बरतिए और इस बात को सोचिए कि बचपन से ऐसे चीजें होती है और नकालों से आपको सावधान रहना। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था, फिर से एक बार रिपीट किया जाए। वैशाली जी जानना चाहती हैं कि क्या हम सुपर 30 में एडमिशन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, आप सुपर 30 में जरूर एडमिशन ले सकती हैं। अभी कुछ दिनों के बाद मैं वेबसाइट अपडेट करूंगा, जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, स्कूल शुरू होंगे, कोचिंग सेंटर शुरू होंगे, तो मैं क्रिया शुरू करूंगा। हमारे फेसबुक से या फिर super30.org से आप जुड़े रहें, आपको जानकारी मिलेगी। Thank you, sir. And the questions are popping up every now and then. And Ravindra sir ही पूछना चाहते हैं किसी बच्चे के थ्रू, बच्चे भी हैं, कि स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए। आपने देखा होगा आजकल कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा ये प्रचलन में आ रहा है, बहुत ज्यादा हर जगह नेगेटिविटी सुनने में भी आ रही है। तो पेरेंट्स भी परेशान है, टीचर्स भी, एज वेल एज स्टूडेंट्स, दे आर नॉट एबल टू मैनेज स्ट्रेस। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये तो है ही, अपने आप पर धैर्य बनाए रखे और हमेशा ये सोचे कि अभी जो टाइम है ना वो पेशेंस बनाए रखने का है। और जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती, कोई ऐसा जीवन ही नहीं है, न किसी व्यक्ति का, न कभी किसी कालखंड का ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि दुख हुआ हो। गौतम बुद्ध का जो सबसे बड़ा ज्ञान था वही था कि बगैर दुख के, बगैर टेंशन के, बगैर कष्ट के कभी सुख नहीं मिलता। तो दोनों है, आपके जीवन में खुशियां भी आई हैं और आएंगी भी आगे। इस बात को समझिए कि नेचुरल फिनोमेनन है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अचानक ही कैसे आ गया भाई, दुख आ गया। कोई आदमी की ये मूर्खता है जो हमेशा उस सुख की अभिलाषा करता है। तो सुख दुख दोनों ही समझिए कि सिक्के के 2 पहलू है। इसको एक्सेप्ट करना सीखिए और उम्मीद लगाइए कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तो आने वाला कल हमारा ही होगा, कल सवेरा होगा और अच्छा होगा। ये भाव हमेशा मन में भरिए, अपने बच्चों के भी मन में भरने का प्रयास करिए। सर, आखिरी 2 सवाल लेते हैं क्योंकि वक्त एंड घड़ी टिक टिक कर रही है, जो हमें बता रही है कि ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, जबकि बच्चों के प्रश्न एंड स्पेशली अब पेरेंट्स के भी प्रश्न आ रहे हैं रिगार्डिंग बच्चे के शॉर्ट टेम्पर्डनेस, एंड दे वांट टू नो व्हाट इज द सफलता का मंत्र।
आपको क्या लगता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मंत्र फॉर सफलता, तो सक्सेस मंत्र आप कुछ बताना चाहेंगे सर? अच्छा, ये तो मंत्र बताएंगे, एक और सवाल पूछ लीजिए ताकि दोनों का जवाब एक ही साथ दे दे तो अच्छी बात होगी। So again the question is for the class 12 students कि जैसे अभी जेई भी सितंबर में है और अभी भी उनके पास वक्त है थोड़ा सा पढ़ाई करने का और सीईटी एग्जाम का, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो लास्ट मंथ में क्या प्रिपरेशन करें? अब जैसे सितंबर में आना, तो लास्ट मंथ को कैसे वो टाइम करें? देखिए, ऐसा है कि लास्ट मंथ में आप कोई नई चीजें पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर जितनी चीजें आप पढ़िए उसी का अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, फायदा होगा। जो कई ऐसी चीजें, जैसे एग्जाम्पल के लिए पाराबोला का ढेर सारा फार्मूला है, ढेर सारा इलिप्स का फार्मूला, इंटीग्रेशन का बहुत सारा फार्मूला है, जो समझने के बावजूद आदमी भूल जाता है। उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के उसको बार बार पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसका बहुत ही फायदा होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आप कोई मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करिए। आजकल इंटरनेट पर कई फ्री टेस्ट भी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिसका आप लोग लाभ उठा सकती है, तो ये काम जरूर करिए। और आईआईटी के लिए पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरा सीरियसली लगिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं, आईआईटी होगा। लेकिन आईआईटी अगर नहीं भी हो तो कोई जीवन रुक नहीं जाता है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जीवन में, मैंने देखा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि अगर आईआईटी नहीं भी हुआ तो आप जो भी कॉलेज में पढ़े, चाहे आप पीसीईटी में पढ़े, नूतन में पढ़े या कहीं भी पढ़े, अगर वहां भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, अपनी पूरी ताकत लगाइएगा, तो आप इतिहास बना सकते हैं। एक बार की मैं घटना बताना चाहूंगा। एक बच्चा था जिसको मैंने पढ़ाया, उसका कहीं कुछ अच्छे कॉलेज में हुआ, एक छोटा सा प्राइवेट कॉलेज में चला गया और वहां जाकर इतना मेहनत किया कि पूछिए मत, लेकिन उस कट गया मुझसे। एक बार मैं न्यूयॉर्क गया, वहां न्यूयॉर्क में हमारे फिल्म का प्रीमियर शो था जो डिस्कवरी चैनल के लिए बना। वहां पर हमारे डायरेक्टर से मिलने फिल्म के आ गया वो लड़का, बोला कि मैं अभी न्यूयॉर्क के बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर हूँ। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि, और उस दिन मैंने महसूस किया कि एक छोटा कॉलेज का भी बच्चा, एक साधारण कॉलेज का बच्चा भी अगर चाहत उसमें हो तो बहुत कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि नूतन कॉलेज तो बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। इस तरह के कॉलेज में भी पढ़िए और अपना कैरियर बनाइए। किसी चीज के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चलते चलते आखिरी में मैं सफलता का मंत्र ये बताना चाहूंगा कि कोई फील्ड हो, चाहे मेडिकल की तैयारी करते हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, या जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, या शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हो, 4 बातों का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। और ये हमने अपने बच्चों पर प्रयोग किया जिसका बहुत लाभ मिला। और बच्चे बोले बाद में कि सर ये 4 ही मंत्र हैं जिसके आधार पर मुझे सफलता मिली। पहली बात है प्रबल प्यास। तो बच्चों आप पे प्रबल प्यास होनी चाहिए कि अच्छा इंजीनियरिंग मुझे करना है, अच्छा इंजीनियर लाइफ में बनना है। सोते जागते, खाते पीते, उठते, हमेशा आपके दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सवाल, टेस्ट के प्रॉब्लम जो नहीं बने हो, ये सब चलते रहना चाहिए, हमेशा ये चलते रहना चाहिए। अगर एक बार की बात है, इसी तरह के एक सेमिनार में भी, तो वेबिनार का जमाना, सेमिनार में गया, एक बच्ची खड़ी हो गई और पूछी, अच्छा सर ये बताइए मुझे कैसे पता चलेगा कि इस साल मैं आईआईटी कर रही हूँ, कौन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं? हम कह रहे बच्ची कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। सोचो सुबह जब तुम उठती हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेस्ट चलते 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 रात तक जब सोने जाती तो वही सवाल चलते हैं, वही सब्जेक्ट्स माइंड में आते हैं। तो समझ लो बच्ची तुम आईआईटी कर रही हो और दिमाग में और कुछ भी बात आते हैं, दूसरी चीज आती है, तो समझ लो कि तुम्हारे रास्ते भटक गए। तो यही बात है कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है, आप में प्रबल प्यास है, आप में ट्रेमेंडस थ्रस्ट है, तो आप समझिए कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, कभी भी निगेटिव नहीं सोच से भरना चाहिए। देखिए कैम्ब्रिज में मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं जा पाया, कितने केस मुकदमे अटैक हुए, बहुत सारे निगेटिव चीज आएंगे लाइफ में, बहुत चीजें आपको निगेटिव करने पर मजबूर करेंगे, फिर भी आप निगेटिव भाव से नहीं करिए कि नहीं सफलता मिलेगी। जो भी आज तक लगा रहा, जो भी मेहनत किया,
वो सफल रहा। तो केवल पॉजिटिव चीजों को देखकर अपने आप को पॉजिटिव बनाइए तो फायदा होगा। दूसरी बात तो हो गई, अब तीसरी बात है अथक प्रयास, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते हैं। हमारे आज बच्चे सफल हैं। अभिषेक से आपकी मुलाकात हुई, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, 500 से भी अधिक बच्चे हैं। कुछ छोटे छोटे कोर्स में भी कई फ्री कोर्स पढ़ाए, हजारों बच्चे जिन्होंने रात दिन एक कर दिया। सुपर 30 का नाम है, फिल्म बनी, आप लोग इतना देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, उसके सारे पीछे उन तमाम बच्चों की मेहनत है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। रात के 12 बजे उनके हॉस्टल में जाइए, सुबह 10 बजे जाइए, या रविवार है मान लो आज दिन में 2 बजे जाइए, बच्चे पढ़ते ही नजर आएंगे। ये आप जान के रहिए कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़ाई मेहनत से होती है, पैसे से नहीं होती है। पढ़ाई अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से नहीं होती है, परिश्रम, कठोर परिश्रम से होती है कोई भी। तो आप अगर अथक प्रयास करते हैं, बिना रुके थके लगे रहते हैं, तो सफलता तय है। इन तमाम तीनों चीजों के बाद कि आप में प्रबल प्रयास है, आप में ट्रेमेंडस थ्रस्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और साथ साथ आप हार्ड लेबर भी कर रहे हैं, फिर भी असीम है, जिसको हम लोग ग्रेट पेशेंस कहते हैं, उसका होना एकदम जरूरी है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत बार बच्चा सोचेगा कि अच्छा आज पीसीईटी नूतन ने प्रोग्राम कराया है, आनंद सर से बात हुई है, मोना मैडम ने मुझे उत्साहित किया है, डायरेक्टर साहब ने मुझे उत्साहित किया है, मैं जाके आज पढ़ाई करूंगा या करूंगी, रात भर मेहनत करूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी। जल्दी सुबह उठी बच्चा उठा, कोई किताब खोला, नींद आने लगी, मन अलसाने लगा, अच्छा कल पढ़ते, छूट गया, फिर कल पढ़ा। ऐसी ही चीजें होती है। नहीं, वो बनाए रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आप बड़े उत्साह के साथ, बड़े मोटिवेटेड होकर काम शुरू करेंगे, मुश्किलें आएंगी, आप छोड़ देते हैं। हम लोग कई बार ऐसा हुआ कि कई बच्चों को ओलंपियाड्स का प्रॉब्लम दिया, अभिषेक जैसे बच्चों को बना के लाओ, देखते हैं कौन कौन आईएमओ के लेवल का सवाल बना के लाता है। 4-5 सवाल दे दिया, बच्चा 3-4 दिन के बाद बोला नहीं सर, रूटीन का जो असाइनमेंट दिया वो तो बना, लेकिन ये सब तो बनता ही नहीं है सवाल सर। हम कह रहे भाई तुम 2 दिन और मेहनत करो। 2 दिन बाद नहीं सर, सब अंधेरा दिख रहा है, कुछ फार्मूला काम नहीं आ रहा है। हम यही तो जीवन का सत्य है कि रात जितनी गहरी हो रही है, रात जितनी अंधेरी हो रही है, सवेरा के तुम उतने करीब पहुंच रहे हो। और बच्चे फिर जाके मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और आते हैं कहते सर सवेरा हो गया, सवाल बन गया। तो ये चारों मंत्र अगर आप लेके जीवन में चलेंगे, तो मैं दिल से बोल रहा हूं, आने वाला कल आपका होगा, हमारे देश का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपसे जब भी बात होती है, मुलाकात होती है, इट्स रियली सो मोटिवेशनल एंड यू राइटली सेड फॉर सफलता का मंत्र। इससे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। आप चलना तो शुरू करो मेरे दोस्तों, अच्छे इंसानों की तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एंड इसी के साथ वी वुड लाइक टू से गुड बाय। एंड यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर गिरीश जी और तेजस जी हमारे साथ जुड़े बच्चों और टीचर्स से समक्ष ये रखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी हम एक टीचर्स के लिए प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे और आनंद सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सेमिनार में टीचर्स को प्रोत्साहित करें और मोटिवेट करें एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी पे थोड़ा सा रोशनी डालें। इसी के साथ we will say goodbye. Thank you very much. Thank you, sir, for joining with us. Thank you, PCET Newton's group, for giving us this opportunity, and YIN program to giving us this opportunity. Thank you, Anand sir. Thank you very much.